Assalamu alaikum my dear students, welcome in online biology class. Hope you all are fine. And now here we are going to deal with the chapter that we have already started, and here in this chapter we are dealing with the food products and the use of microbes to enhance the productivity. So the name of the chapter is enhancement of food production, and here we have completed a maximum part of this chapter, and today it will be a last lecture for last video for this chapter. So in last video we have completed the types of biofertilizers like nitrogen fixing and their other types. Then about that we have already discussed in very detail, and about the fungal biofertilizers also we have talked already. So here we are going to end up with the chapter today. So this is the reduced part of your this chapter. So in every video I am sharing this with you people, so you please keep this in your mind that this part is a reduced one, so no question will going to ask on this. So today we are going to start with biofertilizer microorganism. So here we will talk about the different types of biofertilizers. So biofertilizers are of different type. बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो बायोफर्टिलाइजर्स दो तरह के होते हैं, द बायोफर्टिलाइजर्स दैट इज़ कवर्ड in FCO and the biofertilizer that is not covered in FCO. Now first of all let me tell you about FCO. It is a control, or we can say it is a kind of act, we can say FCO is. Why? To ensure adequate availability of a right quality of fertilizer at a right time and at right price to farmers. The fertilizer was declared as an essential commodity. And fertilizer control order, FCO stands for fertilizer control order. It was acted under section 3 of Essential Commodities Act 1955. Why? To regulate trade, price, quality and distribution of the fertilizer. So that is the reason यहाँ पे basically जो है वो fertilizer के दो type आ जाते हैं. Why? For farmers security and for their convenience. So two types that is included under biofertilizer under FCO and not covered under FCO. So with FCO में जो आ जाएंगे that are Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Mycorrhiza. तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, then different types हम लोग आज डील करने वाले हैं. एंड बाकी के जो दूसरे हैं Azotobacter, Pseudomonas and then mixed cultures, ये जो सारी चीज़ें आती हैं वो it is not covered under FCO. So we will basically talk about the classification of biofertilizers. जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर एंड फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर. तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं. अगर आप लोगों को नहीं पता अब तक तो जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोज इन दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग फर्टिलाइजर एज वेल एज नाइट्रोजन फिक्सिंग फर्टिलाइजर्स बायोफर्टिलाइजर्स. तो हियर वी आर हैविंग बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग में दो तरह के आ जाएंगे, जैसे कि लेग्यूमिनेस है, राइजोबियम्स है. देन ये हो जाता है लेग्यूम्स के लिए. अगर हम लोग बात करेंगे सीरियल्स की तो उसके लिए वहाँ पे एजोला, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पिरिलियम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं. एंड अगर हम लोग फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर एंड फॉस्फेट एसिटोबैक्टर. जैसे कि अगर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर है तो बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, पेनिसिलिन ये स्पीशीज यूटिलाइज हो जाती है. एंड अगर हम लोग फॉस्फेट एब्जॉर्बर अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे बैसिलस, वस्कुलर आर्टिकुलर माइक्रोराइजा जिसको वैम भी कहा जाता है, आर्टिकुलर माइक्रोराइजा, इसके बारे में भी और हम लोग जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग इस तरह के दो टाइप हमको जो है वो एज अ क्लासिफिकेशन मिल जाती है फॉर बायोफर्टिलाइजर. सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द नाइट्रोजन फिक्सिंग वन, that is about the rhizome we are going to talk about. So here it is a type of structure. आपने अक्सर देखा होगा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लें मेथी की, तो मेथी के जो रूट्स होते हैं उसके भी ऊपर जो है वो जड़ों पे रूट पे ऐसे छोटे छोटे बॉल्स, जैसे आप लोग देख सकते हो ऐसे बॉल्स छोटे छोटे बने होते हैं, तो ये कहलाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. एंड ये होता है रूट नोड्यूल. रूट के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज़ द रूट नोड्यूल. सो द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और द बायोफर्टिलाइजर में सबसे पहले
पहले जो आ जाता है वो राइजोबियम है. इट इज़ अ सॉइल बैक्टीरियम वी कैन से, एंड दैट बी एबल टू कॉलोनाइज द लेग्यूम्स रूट. दे आर लिविंग इनसाइड द रूट. सो राइजोबिया आर द रॉड शेप, मोटाइल, एरोबिक, ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया containing nod gene and nif gene. They form symbiotic association with roots of leguminous plant, and they bring about a nodule formation on the roots and multiply inside the nodule. Why? Because of this they fix the atmospheric nitrogen symbiotically, and plant is able to use that nitrogen. So specially it is a important factor for leguminous plants and as well as oil seeds also. So like that it is fixing maximum amount of nitrogen. So as already we have seen that it is a soil habitat bacteria, we can say a soil inside the soil, beneath the soil it is living and colonizing यहाँ पे होती है, यानी कि कॉलोनी फॉर्म करते हैं. एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है. सो द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी राइजोबियम विल vary from free living condition, and they are the most efficient biofertilizer as per the quantity of nitrogen fixed concern, because एक साथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है. They have seen genera and highly specific to form nodules in legumes referred as a cross inoculation group, because as soon as they inoculate inside the plant वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है. एंड बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये इस तरह के नोड्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर रूट के ऊपर बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिक्सेशन आसान हो जाता है. सो अगर हम लोग कल्चर प्लेट पे या अगार प्लेट पे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से राइजोबियम का कल्चर भी हम लोग कर सकते हैं. ये टिश्यू कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. लास्ट ईयर और इन योर लोअर क्लासेस आप लोग टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ चुके हो. तो इस तरीके से अगर हम लोग राइजोबिया का कल्चर करते हैं अगार प्लेट पे तो इस तरीके से कॉलोनी फॉर्म होती है. मतलब ये प्रूफ किया जा रहा है यहाँ अगार प्लेट से कि इट इज़ अ कॉलोनियल बैक्टीरिया, मतलब कि इट इज़ फॉर्मिंग अ कॉलोनी. अगर हम लोग उसका बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरीके से रॉड शेप इसका जो स्ट्रक्चर होता है. दे आर एरोबिक एंड दे आर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग, मीन्स दे आर नॉट फॉर्मिंग स्पोर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, एंड इट इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड दैट कंटेनिंग नॉड जीन एंड निफ जीन. तो ये जीन होता है जिसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी आ जाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर हैविंग द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं. यहाँ पे लेग्यूमिनोसारम ये एक स्पेसिफिक जो है वो बैक्टीरिया है टू पी प्लांट, एंड लेग्यूमिनस फाइजियोली भी यहाँ पे एक कैटेगरी आ जाती है जो कि बीन प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. तो इस तरीके से ये कल्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से कल्चर अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क परफॉर्म किया जाता है बाय दीज बैक्टीरियाज. नेक्स्ट बायोफर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हमको देखना है दैट इज़ एजिटोबैक्टर. सो ये कुछ इस तरीके का नज़र आता है एजिटोबैक्टर, एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग, यानी कि ये नोड्यूल फॉर्म नहीं करता, एंड इट इज़ इंटीमेटली एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ ग्रासेस एंड सर्टन प्लांट. मतलब कि ग्रासेस के रूट्स के अंदर जाके ये जो है वो इस तरीके से अपना काम करता है, जिसकी वजह से नॉन नोड्यूल इसको कहा जाता है. इट मीन्स इट इज़ नॉट फॉर्मिंग द नोड्यूल इनसाइड द फार्म, एंड डायरेक्टली इट इज़ एसोसिएटिंग विद द ग्रास एंड ग्रासेस ऑफ द रूट्स. सो इट इज़ यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर्स फॉर ऑल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, स्पेशली राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. यानी हम लोग जो राइजोबियम की बात किए थे तो वो स्पेसिफिक लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए होता है. लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ही वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. बट अगर हम लोग एजिटोबैक्टर की बात करेंगे तो ये सारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि जिनके अंदर जो लेग्यूम्स नहीं है, जहाँ पे रूट नोड्यूल फॉर्म नहीं होता, वहाँ पे जो है ये स्पेशली काम करता है एजिटोबैक्टर. जैसे कि राइस प्लांट है, कॉटन है और सारे वेजिटेबल्स है, और वी कैन से इन जनरल ऑल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एजिटोबैक्टर इस्तेमाल होता है. Though it is a free living microorganism that is fixing atmospheric nitrogen, but it is acting non-symbiotically. Last example what we have seen that was doing their work in symbiotic association, but यहाँ पे non-symbiotically ये काम होता है, and that is the reason it make available the particular cereals only and some vegetables also for giving the good production, and it's a growth producing substance.
If we will talk about the characteristics of Acetobacter, so it is a heterotrophic, free-living, nitrogen-fixing bacteria, and it is a gram-negative bacteria. It produces a resistance structure, cyst, and it produce a growth promoting substance. So यहाँ पे हमको variety मिल जाती है Acetobacter crococum A, Vinaldi A, Bigerinc A, insignis and other varieties हम लोगों को यहाँ पे मिल सकती हैं. So many strains are fungi static and isolation nitrogen free mannitol medium यहाँ पे मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन फिक्सर्स प्रूफ होता है. Next microorganism is Azospirillum. This is also a free living aerobic nitrogen fixing bacteria associated with roots of corn, wheat and jowar especially. So ये कुछ specific plants के लिए ही fix करता है atmospheric nitrogen, and it fix considerable quantity of nitrogen like 20 to 40 किलोग्राम पर hectare. इसका जो है वो nitrogen fixing का capacity है. So as I said, it is mainly present in cereal plant and inhabits both roots cells as well as surrounding of roots. It means inside out दोनों ये काम करता है. It is forming symbiotic relation and increasing nitrogen fixing potential of the cereal plant. Azospirillum is recognized as a dominant soil microbe and nitrogen in the range of 20 to 40 kilogram per hectare in the rhizosphere and in non-leguminous plants such as cereals, millets, oilseeds, cotton seeds, etc. So considerable quantity of nitrogen fertilizer up to 25 to 30% can be saved by the use of Azospirillum inoculant. That is the reason it is considered as the dominant one among all the microorganisms. Because of this reason only, these species have been commercially exploited for the use as nitrogen supplying biofertilizers and इसीलिए इसका रेशो जो है वो कम होता जा रहा है. Several strains of Azospirillum were shown to exert beneficial effects on plant growth and crop yields under various soil and climatic conditions, and others qualified as per plant growth promoting rhizobacteria. That is the reason that it is always a favorable thing for the farmers. इसी को चुना जाता है because in all climatical condition in the under various soil और climatic condition ये बहुत अच्छे से काम कर लेता है, बहुत अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है इसके थ्रू. दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे फार्मर्स इसको प्रेफर करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज. It is also used for preparation of commercial inoculants on a large scale for cereals and grasses, as it produces growth promoters in addition to fixing nitrogen. यानी कि इसका एक एडिशनल फीचर ये भी है कि ये ग्रोथ प्रमोटर भी इन्हांस कर सकता है प्लांट के लिए. दैट इज़ द रीज़न इसके इनोकुलेंट्स बनाए जाते हैं कमर्शियल लेवल पे. एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ गुड एडेप्टेबिलिटी टू टेम्परेचर, सॉइल, पीएच एंड वाइड होस्ट रेंज. दैट इज़ द रीज़न इसको कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बिकॉज ये ग्रोथ प्रमोटर्स भी प्रोवाइड कर रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो वर्किंग इन ऑल एडवर्स क्लाइमेटिकल कंडीशन. दैट इज़ द रीज़न इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन पर्पस. नेक्स्ट सॉइल बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन और एज अ बायोफर्टिलाइजर जो हमको देखना है दैट इज़ एनाबीना. एंड दिस एनाबीना इज़ नॉट न्यू आई थिंक फॉर यू ऑलरेडी. आप लोग इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो देख चुके हो हमारे लास्ट वीडियोज़ में. सो इट इज़ अ जीनस ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया. जब हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, साइनोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर, वहाँ पे आप जो है वो इस तरह का एनाबीना का स्ट्रक्चर देख चुके हो. So it is a genus of filamentous cyanobacteria that exists as a plankton, and it is known for its nitrogen fixing abilities, and they form symbiotic relationship with certain plants. So they are one of 4 genera of cyanobacteria that produce neurotoxins which are harmful to local wildlife as well as farm animals and pests. So that is the reason that Anabina is very much useful for the nitrogen fixation, because it is having the ability to fix a nitrogen and also forms a symbiotic relationship with certain plants like the coralloid roots of Cycas and Anthoceros thallus. So it has some specialized and colorless cells in it. They are called as heterocysts.
विच आर द साइट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप यहाँ पे बीच में जो लार्ज ओव्यूल शेप स्ट्रक्चर देख सकते हो, दैट इज़ द हेटेरोसिस्ट। सो इन लार्ज स्ट्रक्चर या केमिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके का वहाँ पे प्रोडक्शन और फिक्सेशन होता है। ये इस तरह के केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं एंड ये फोटोसिंथेटिक इफेक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन इट्स यूजुअल फॉर्म। तो इस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेटिक इफेक्ट्स होते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स की जाती है इन द प्लांट ऑफ एनाबीना। Next one is the azolla. Azolla is a free floating water fern and azolla plant consists of floating rhizomes जिसको stems भी कहा जाता है with small overlapping bilobed leaves and roots। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है that is the azolla and as I said that azolla is forming सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एनाबीना, यानी कि एनाबीना और एजोला दोनों का जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो है वो रहता है इनसाइड द सॉइल एंड इस तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये लोग नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। So if we will talk about the characteristics, it is a free floating water fern. It's regarded as live nitrogen manufacturing factory because it harbors nitrogen fixing cyanobacteria. It means Anabaena azolla का, जैसे मैंने बताया, symbiotic association में काम करता है। तो स्पीशीज़ कुछ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एजोला पिन्नाटा, एजोला नीलोसिटा एंड एजोला मैक्सिकाना। ये 3 स्पीशीज़ में एजोला प्लांट जो है वो नेचर में अवेलेबल होता है। So it is extensively used as biofertilizer and green manuring for rice cultivation also. Azolla has very fast growing character and it has double its biomass in 3 to 5 days, यानी बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। Azolla fixes 40 to 60 kilogram per hectare in rice crop and it's a dual cropping enhance rice yield by 55% and supplement nitrogen by 50%। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज हो जाता है प्लांट का जब हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। यू कैन सी दिस iron like content, so it is also used as biofertilizer better crop yield। तो इस तरीके से जब ये एक मतबा फील्ड में ग्रो हो जाती है तो ये फील्ड के लिए एट बेस्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर का काम करती है इन एसोसिएशन विद द एनाबीना एजोला सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है। लाइक दिस इनसाइड द प्लांट, यानी कि एजोला का अगर प्लांट है तो प्लांट के लीफ के अंदर इस तरीके से आप जो देख सकते हो, दे आर द सिस्ट और द एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे इस तरह से इनोकुलेट हो जाते हैं प्लांट के अंदर और इस तरह से यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। हियर बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इस तरीके से एनाबीना एंड एजोला काम करते हैं। तो अगर हम लोग बेनिफिट्स बायोफर्टिलाइजर्स की बेनिफिट्स देखेंगे तो इट इज़ लो कॉस्ट एंड कैन बी यूज्ड बाय मार्जिनल फार्मर्स, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन हजार्ड्स, दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ब्लू ग्रीन algae एज बायोफर्टिलाइजर, secrete ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स एंड विटामिन, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि उसमें प्रमोटर्स भी ऐड हो जाते हैं बाय यूटिलाइजिंग दिस बायोफर्टिलाइजर्स। So azotobacter supply nitrogen and antibiotics in the soil and it can increase physiochemical properties of soil like texture, structure, pH, water holding capacity of soil by providing nutrients and other organic content to the plant। So overall जो है वो पूरा benefit farmer को मिलता है जब वो इसका इस्तेमाल करते हैं। It may also give a renewable source of nutrients, it sustains soil health, supplement, it is working as a supplement for chemical fertilizer, it replaces 25 to 30% chemical fertilizer, it increase the grain yields by 10 to 40% and it decompose plant residue and stabilize carbon nitrogen ratio of the soil, it improve texture, structure and water holding capacity of soil, नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो इतने सारे इसके एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये फार्मर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है इसको इस्तेमाल करना। सो लाइक दैट we have completed with this chapter. Hope you have understood the concept whatever I have teach to you.
तो यहाँ पे बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। देन टू अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू प्लीज़ गो थ्रू द कंटेंट वंस अगेन नाइसली। जितने भी इस चैप्टर के वीडियोस बने हैं, टोटल 9 वीडियोस आपको इस चैप्टर के मिलेंगे, तो टोटल 9 वीडियोस आप जस्ट गो थ्रू वंस अगेन। और उसमें से भी अगर कुछ नहीं समझ रहा है, कहीं पे आपको डाउट है कुछ, तो यू जस्ट कम टू मी एंड आस्क योर डाउट्स टू मी। हम लोग फिर से इंशाल्लाह ये चैप्टर डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई डाउट इसके अंदर आता है। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इसको बहुत अच्छे से रीड करोगे एंड वॉट एवर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई गेव यू इन दिस वीडियोस, तो उसके थ्रू आपको जो है वो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इंशाल्लाह। और रेड्यूस सिलेबस तो ऑलरेडी मैं आपको हर वीडियो में इसके ताल्लुक़ से आपको प्रोवाइड करती ही रहती हूँ। तो जस्ट मेक श्योर कि आप वो रेड्यूस सिलेबस को फॉलो करते हुए इस चैप्टर को प्रिपेयर करें। ये स्कोरिंग चैप्टर है और मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू राइट इट ऑल्सो। सो दैट इज़ द रीज़न आई सेड इट्स अ वेरी ईजी एंड मार्क गेनिंग चैप्टर आई कैन से। So just go through it. इंशाल्लाह मिलते हैं next time with some another interesting chapter. So till that, take care. Assalamu alaikum.